Hello, in this video I will discuss about electromagnetic induction. So let's first discuss about what are the contents that I will discuss in this video. First I will give a briefly introduction, then we will study about Faraday's experiment, and that is the most important thing, and with the help of this experiment we will develop the concept of magnetic flux, and we will end the video with the Faraday's law. So this is all that we'll discuss in this video. So let's start. So in the previous from the previous chapters we know that a electric current produces a magnetic field. ये हमने पढ़ा था ना कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. Magnetic field line, there will be magnetic field line, there will be magnetic field produced by a current carrying coil or current carrying loop. So that's what we have discussed in the previous chapter, that electric current can produce magnetic field. So a natural thing would be to ask a reverse question. And what is the reverse question? Can, that is a question mark, can a magnetic field could produce इलेक्ट्रिक करंट? तो बहुत बेसिक चीज है कि कोई उसका रिवर्स प्रोसेस भी जानना चाहेगा कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है? सो let's examine it with the help of Faraday's experiment. Let's examine it how Faraday's had done it. So basically we will study the two experiments of Faraday's in this video, and from the first experiment itself we will try to develop the concepts, and then at the last we will discuss the second experiment just to verify our observations. Okay, now let's study about the first experiment, Faraday's first experiment. First experiment of Faraday. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे. सो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या उसको समझते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में here we have taken a coil, a metallic coil, and we have connected a galvanometer through it. Here this is a coil and we have connected a galvanometer through it. हमने क्या किया, हमने इसके पास एक मैग्नेट रख दिया. से दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल. और हमको पता है कि कोई भी मैग्नेट होता है उसके आसपास क्या होगा, उसके आसपास there will be magnetic field, and which could be explained with the help of, which could be, or you can say which could be represented with the help of magnetic field line. So यहाँ पे मैग्नेट है तो ढेर सारी यहाँ पे कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. देयर वुड बी लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दिस मैग्नेट. तो हमें क्या चेक करना था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है. तो हमने सिंपली जाके मैग्नेट को यहाँ पे रख दिया. तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुई और गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया. तो एज ए रिजल्ट वी कुड से दैट कैन अ मैग्नेटिक फील्ड कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? द आंसर इज नो. द आंसर इज अ बिग नो. नो, the reverse process is not possible, means the magnetic field cannot produce electric current. Okay, so what happened is that अभी इसमें कुछ सिचुएशंस को चेंज किया. क्या किया हमने, और इसमें ऑब्जर्वेशन की है, वी कुड से दैट फैराडे ने इसमें ऑब्जर्वेशन की कि जब भी कोई मैग्नेट को
इस कॉइल के पास लेके आते हैं और जब भी इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाते हैं, इन दीज टू केसेस we saw a deflection in the galvanometer, which means that in these two cases a electric current produced in the galvanometer. तो हुआ क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जब basically we could write the observation that whenever there was relative motion between magnet and coil, in that case a current produced in the coil. And second observation is that जब इस मैग्नेट को हम धीरे धीरे लेके गए तो करंट कम प्रोड्यूस हुआ, और जब इस मैग्नेट को तेजी से लेके हम गए तो क्या हुआ, ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुई। मींस फास्टर मोशन प्रोड्यूस्ड greater current. And again the third observation was that, very important observation was that, कि जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के पास ले आते थे तो उससे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ, लेकिन जब इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाते थे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता था। मींस अब इसको लिखने में काफी बड़ा हो जाएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट दैट whenever we brought the magnet towards the coil, then the current moved, the galvanometer shows a deflection in right direction, and when we take away the magnet from the coil, then the deflection was in the opposite direction. Okay, so this was the third observation. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमें ये समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। तो हमको ये तो पता है कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहे होंगे या इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जा रहे होंगे तो ऐसा हो क्या रहा होगा, समझते हैं। तो इस मैग्नेट के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, जो कि नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ, दैट इज गोइंग साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो शुरुआत में इस कॉइल के पास सोचिए, शुरुआत में इस कॉइल के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं पास हो रही है। बट जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके जाएंगे, so the amount of magnetic field passing through the coil is changing. Similarly, in this case also, initially the magnetic field that is passing through the coil is maximum, and as we take the magnet away from the coil, the amount of magnetic field that is passing through the coil is decreasing with time. और हम क्या कह सकते हैं कि समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस कॉइल के साथ पास हो रही है वो चेंज हो रही है, और इन दोनों ही केस में एक करंट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हम चीज यूज कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ कॉइल, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू लूप। अब इसको हम एक क्वांटिटी के साथ डिफाइन कर देते हैं, क्वांटिटी के रूप में, जिसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। In the same way we have defined the electric flux in the case of electrostatics. We can define a magnetic flux as the amount of magnetic field lines passing through a loop, और इसको हम डिनोट कर देंगे फाई से, और नीचे सबस्क्रिप्ट लगा दिया बी, विच मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, से दिस इज अ लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, and say there is angle theta between these two, then we can define magnetic flux as dot product of vector magnetic field and area vector, and say the area is infinitesimally small, then we can define it as integral of b dot ds. The unit of magnetic flux is
Weber, and 1 Weber is equal to 1 Tesla meter square, and it is a scalar quantity. Okay, so this is all about the magnetic flux, that is the amount of magnetic field passing through the loop. तो अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम मैग्नेट को मैग्नेटिक लूप के पास ले जा रहे होंगे या मैग्नेट को मैग्नेटिक लूप इस लूप से दूर ले जा रहे होंगे, तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप, और वी कुड से कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो हम एज ए रिजल्ट क्या कह सकते हैं कि अच्छा, और करंट प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? करंट प्रोड्यूस होने के लिए प्रोड्यूस होना चाहिए पहले एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना चाहिए। तो सॉरी, तो जब भी किसी क्लोज्ड लूप के थ्रू, क्लोज्ड मेटलिक लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एज ए रिजल्ट एक करंट फ्लो होती है उस लूप में जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस करेगी, जो कि हमारा शुरुआत में क्वेश्चन था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक करंट को? नो, बट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, बट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और अब हम चलते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को डिफाइन करेंगे। अभी तक हमने डेफिनेशन पे हम गए ही नहीं थे, तो अब नाउ दिस इज द राइट टाइम वी कैन define the phenomena of electromagnetic induction, and we can define it as it is a phenomena in which electric current is generated by varying magnetic field, and this the phenomena वो phenomena जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, कैसे? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है, तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अभी इसकी ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस तो इसकी बाद में आएंगे, बस बेसिकली इंटरेस्ट के लिए अभी बताते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो कैसे जनरेट होती है? जनरेटर्स आर बेस्ड ऑन electromagnetic induction. The induction stove we use in our home, in factory induction furnaces are used, electric guitars, they all work on the principle of electromagnetic induction, and a lot more of applications are there of electromagnetic induction. So till now we have defined the phenomena of electromagnetic induction. We studied about the first experiment of Faraday, then we defined magnetic flux. Now let's move toward the second experiment of Faraday. तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट को हम क्यों पढ़ेंगे? बस अभी जितनी ऑब्जर्वेशन हुई है उसको हम कोलैबोरेट करने के लिए पढ़ेंगे कि क्या जो हमने ऑब्जर्वेशन की है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बस उसके लिए हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। So this was the first experiment, and here we defined the magnetic flux, and now let's move toward the second experiment. Second experiment of Faraday. So in this experiment, again there is a loop which is connected to a galvanometer, and here in its neighbor we also have a loop, second loop, which is connected to a battery, and here we have a key. Say this is a coil 1, this is coil 2. Generally coil 1 is known as primary coil and this coil 2 is known as secondary coil. We will not go into that. तो होगा क्या? शुरुआत में तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर जब हमने क्या की, की को क्लोज किया, जब हमने की को क्लोज किया तो हमने देखा कि बहुत थोड़े से समय के लिए गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो किया।
से इन द राइट डायरेक्शन, और उसके थोड़ी देर बाद ही अगेन द डिफ्लेक्शन बिकम जीरो। उसके बाद जीरो ही रहा, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ी देर बाद क्या किया, की को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। थोड़ी देर बाद की को ओपन कर, फिर से हमने देखा कि बहुत थोड़ी सी देर के लिए डिफ्लेक्शन शो हुआ गैल्वेनोमीटर में, बट नाउ इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। एंड फिर से थोड़े समय के बाद वो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, अगेन इट कम्स टू जीरो। तो हो क्या रहा होगा, बस अब हम उसको इमेजिन करते हैं, क्योंकि हमने लगभग सारी चीजें पढ़ रखी है, अब जो भी चीजें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। तो हो क्या रहा होगा, शुरुआत में समझिए, शुरुआत में जब ये की ओपन था, इस प्राइमरी कॉइल में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो एज ए रिजल्ट इस गैल्वेनोमीटर से भी डिफ्लेक्शन क्या था, जीरो था। जब हमने की को क्लोज किया, जब हमने की को क्लोज किया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि करंट अचानक एक 5 एम्पियर अगर करंट फ्लो होनी थी तो सीधे 5 हो गई। करंट क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, करंट क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। और जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगी, तो इसके थ्रू इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और इसके थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। और एज ए रिजल्ट हमने अभी अभी देखा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल के थ्रू चेंज होता है तो क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, बट कुछ टाइम बाद, बहुत ही थोड़े से समय के बाद, करंट क्या है, अपनी एक स्टीडी वैल्यू पालेगी। और जब करंट स्टीडी हो जाएगी तो यहाँ पे इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्टीडी, और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट द गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। अगेन व्हेन वी ओपन द स्विच, यहाँ पे क्या होगा, जब जैसे हमने स्विच को ओपन किया, अगेन करंट इस बार तुरंत 5 एम्पियर से 0 एम्पियर पे तो नहीं चली जाएगी, धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगी। और जब भी करंट डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, एज अ रिजल्ट इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ अगेन इस बार घट रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। और उसके बाद जैसे ही करंट यहाँ पे जीरो हो गया, फिर से यहाँ पे पास इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट था वो जीरो हो गया, एज ए रिजल्ट द गैल्वेनोमीटर शोड नो डिफ्लेक्शन। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे बेसिकली हमने सिर्फ अपने फैक्ट्स जो अभी पढ़े थे उसको वेरीफाई करने के लिए यूज कर लिया। तो सो वी आल्सो कंप्लीटेड द Faraday's experiment. Now at last we will study the Faraday's law. तो अभी आप देखेंगे कि Faraday's law भी कुछ नहीं है, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं बस उसको ही बोल रहा है। जो हमने चीजें पढ़ी बस उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई भी लूप है, इसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और एज ए रिजल्ट एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, जिसको हमने बोल दिया इंड्यूस्ड करंट। तो बस इसी को बोल दिया फैराडे, इसी को बोलते हैं फैराडेज लॉ। इसको कैसे लिखेंगे, सपोज वी रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय दिस ई, and the magnitude of induced EMF is time rate of change of magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ जैसे चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे, वही दैट विल गिव राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ conducting loop is equal to the time rate of change of magnetic flux through the loop। तो मैग्नीट्यूड जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो किसके बराबर होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू द लूप। और यहाँ पे एक बाहर आगे निगेटिव साइन भी लगता है। तो मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, डायरेक्शन के लिए एक निगेटिव साइन भी लगता है, एंड दिस निगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंजेस लॉ, that we will cover in some other video. We can because that itself will take a lot of time, but we can say in this video that this is due to energy conservation, and with the help of Lenge's law we can give the direction of induced
current. We can give the direction of induced current with the help of Lenge's law, and it is based on energy conservation. बेसिकली बस आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कराने के लिए कि अभी देखिए इसमें क्या हो रहा था, जब करंट बढ़ रही थी तो जब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस साइड था, और जब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा था तो करंट डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड था। तो ये क्यों हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो वो सब पता चलती है विद द हेल्प ऑफ लेंजेस लॉ, एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ये हो गया फैराडेज लॉ। तो हमने फैराडेज लॉ को भी डिस्कस कर लिया। अभी क्या बोल रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो तीन तरीके से चेंज हो सकता है, कैसे, इसको देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर लें अगर, तो ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए निगेटिव साइन को यहाँ पे अभी नहीं रखा है मैंने। तो ये कैसे हो सकता है, डी बाई डी टी ऑफ magnetic flux could be written as BA cos theta. Here we are talking about the magnitude of magnetic field and area vector. So what could happen that it could happen that magnetic field is changing with respect to time, and that is giving rise to induced EMF, or it could happen that we are changing the area of the loop or the amount of area which is inside the magnetic field, that is giving rise to induced EMF, or we could change the angle theta is the angle between magnetic field and area vector, or we could induce the EMF by changing the angle between magnetic field and area vector, और इनका कोई कॉम्बिनेशन भी यूज करके हम इन EMF को इंड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली इन तरीकों से हम एक इन EMF को इंड्यूस कर सकते हैं किसी कॉइल में। अच्छा, अभी लास्ट में हम इस EMF को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट DL भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। और अगर हम इसके थ्रू इस लेक्चर को कंक्लूड करना चाहें तो बहुत ब्यूटीफुली वी कुड राइट इट एज लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, एंड द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिविंग राइज टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कुड राइट इट एज चेंजिंग magnetic field produces electric field। और ये तो इंटीग्रल फॉर्म होगा, डिफरेंशियल फॉर्म में भी हम इसको देख सकते हैं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। यहाँ पे वी कुड सी दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिविंग राइज टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is all in for this video. Let's basically recapitulate what we have discussed in this lecture. So basically first we started this lecture with a question that can a magnetic field could produce electric current. So we found that the answer is no, but we found from the experiments of Faraday that instead a changing magnetic field can produce electric current, and this phenomena of production of electric current by changing magnetic field is known as electromagnetic induction. And in the process we developed the concept of magnetic flux, that is the amount of magnetic field line passing through a loop, which is given by B vector dot A vector, and its unit is Weber. And we studied the second experiment of Faraday to verify our observations, and at last we, on the basis of the observations of Faraday's experiment, we gave the Faraday law. We developed the concept of Faraday law that induced EMF, the magnitude of induced EMF is time rate of change of magnetic flux with respect time rate of change of magnetic flux, and here the negative sign is due to Lenge's law, which is gives the direction of induced current, and it is based on energy conservation. And again we discussed that this EMF could be induced in three ways, either by changing the magnetic field with respect to time, or by changing the area with respect to time, or by changing the angle between magnetic field and area vector. And at last we concluded our lecture with the crux that a changing magnetic field produces an electric field, and we wrote the differential form of Faraday's law. So that's all for this video. Thank you.